हम सीधे आपको लिए चलते हैं। कांग्रेस की तरफ से 2014 चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है। I think he is the most generous and he is a genuinely good man. ये तो होने के देगा कि हमारे 2014 के चुनाव के लिए घोषणा पत्र क्या है, लेकिन एक बात तो मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र एक अनवरत बहती हुई सरिता की धारा की तरह है, जो इसका एक क्रम होता है, एक निश्चित विचार होता है, एक निश्चित दृष्टि होती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र एक अनवरत बहती हुई सरिता की धारा की तरह है। जी, तो 2014 चुनाव से पहले कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो जो जारी किया जा रहा है, और देखना ये होगा कि अपने इस मैनिफेस्टो में किस तरीके से हर मुद्दे को उठाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाती है, हर तबके को लुभाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाती है। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी अलग अलग तबकों के लोगों से मिल रहे थे, अलग अलग लोगों से उनकी राय जान रहे थे। उसे राहुल की चौपाल कहा जा रहा था, जिसमें राहुल गांधी का कहना यह था कि वो लोगों के बीच जाना चाहते हैं, उनका मन टटोलना चाहते हैं, ताकि जमीनी सच्चाई है क्या इससे वो खुद को वाकिफ कर सकें और फिर लोगों की चाहत के मुताबिक, लोगों की जरूरतों के मुताबिक एक कांग्रेस का ऐसा मैनिफेस्टो तैयार कर सके जो जमीनी सच्चाई को का प्रतिबिंब बन सके। तो इस बीच कांग्रेस का यह मैनिफेस्टो जो जारी किया जा रहा है, ए.के. एंटनी घोषणा पत्र जो तैयार किया गया, उस समिति के अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद हैं यहां पर। प्रोसेस चालू किया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहां पर मौजूद हैं। Now I request A.K. ji, Chairman Manifesto, to say a few words. Now I request Sri A.K. Anthony ji, Chairman of the Manifesto Committee, to say a few words. Respected सेवा केस and महिला केस on the media. Today is a great day for all of us. All these years, all political parties followed a particular system in preparing the manifesto. Sitting in the most of the parties used to prepare the manifestos. This time, we have deviated from the past practice. Congress adopted a novel method of preparing the Congress manifesto. This novel method only because of the determination and guidance by our Congress Vice President. The question on which she was particular. The manifesto must reflect, it must truly reflect the voice aspirations of the Indian people all over the country.
And this manifesto must bring out a new vision for India. With this end in view, we have organized series of consultations all over India. Nearly 5 months took place to prepare this manifesto. And one glad thing is, most of the interactions held in various places of India, far-flung areas, Rahulji personally attended, interacted away with cross sections of our society. That is why this time I am happy to tell our manifesto is really a novel new manifesto. Happy we are able to include many of the important suggestions we got from the interactions. But at the same time, I feel sorry because even though now we included many of the suggestions, this manifesto itself is one of the lengthiest manifesto. So we are not able to include all the suggestions given by various cross-sections of the people. We will find some other mechanism to bring out all these suggestions before the people. I am sure the Indian people, cutting across caste, creed, तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो रहा है। राहुल गांधी के मार्गदर्शन में ये मैनिफेस्टो बना है और इस वक्त राहुल गांधी यहाँ पर लोगों से मुखातिब हैं। Women, and we asked all of them what they would like to put in this manifesto. So the manifesto that we have is fully the voice of the people of this country. We had a manifesto in 2009, and I'm proud to say 90% of what we had done in that manifesto has been delivered by the UPA government and the Prime Minister. And we commit to do exactly the same in the 2014 manifesto. So I'd like to say a little about what the Congress Party stands for that is different than our opponents. We believe that for this country to grow, there needs to be a firm partnership between business, between the economic sectors of this country, and between the poor. We believe that you cannot grow this country neglecting either business or neglecting the poor people. And the best party, the best ideology to do this is the Congress Party. I'd like to say a little bit in Hindi for the people I spoke to. आपके साथ बहुत लंबी बातचीत हुई हमारी और आपने हमें बहुत अच्छे सुझाव दिए। दिल्ली के रेलवे स्टेशन में हमारे कुली भाइयों ने हमें सुझाव दिए, महाराष्ट्र में मच्छी मारों ने हमें सुझाव दिए, महिलाओं ने, आदिवासियों ने, सबने हमें सुझाव दिए और हमने पहली बार मैनिफेस्टो में गहराई से आपकी ली है। मैं आपसे वायदा करना चाहता हूं कि वो जो 70 करोड़ लोग हैं जो बीपीएल लाइन से ऊपर है और मिडिल क्लास के नीचे हैं, जिनको मिडिल क्लास डालना करना चाहता हूं, जिनको आप इस मैनिफेस्टो में लिखने को कहा है वो के लिए पूरा करेंगे। गरीब जनता से मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी पैरों के नीचे एक अधिकार का फर्श है, उस फर्श को हम और करेंगे और मजबूत करेंगे कि आपको भी लगे कि हिंदुस्तान में आपके लिए जगह है, आपकी प्रगति के लिए जगह है। और जो हमारे बिजनेस के लोग हैं जिनकी राय भी इस मैनिफेस्टो में आपसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए हम ईज ऑफ बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपको तेजी से प्रगति करने के लिए हम पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।
अब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से अनुरोध है कि वे कुछ बात कहें। Respected Sonia ji, dear Rahul ji, Anthony ji, Dwivedi ji, Makan ji, members of the Congress Working Committee, President of the State Congress units, brothers and sisters. Today is a unique day when the Congress Party is going to recommit all of us to a new vision, a vision of an inclusive society, a rapidly expanding economy in which growth benefits all sections of our society, and that in the process we generate lot more new jobs to provide to the young people of our country. Today there is discussion everywhere about who is good at guaranteeing or providing development. Now, development has many models. One here these days about Gujarat model. One hears about other models. And the Congress model is the model which recognizes that there is a need for an expanding economy to provide lasting solutions to the problems of poverty, but that growth by itself is not sufficient to achieve the solid results of an inclusive growth process. It needs to be backed by adequate. कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है और फिलहाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान जो उपलब्धियां रही हैं सरकार की उसे गिना रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं कांग्रेस दफ्तर। And here in this election manifesto of the Congress Party, we have spelled out a vision of inclusive growth, a growth process which touches the lives of all people, particularly those who are poor and below the poverty line. Growth has many dimensions, and I am glad that the Congress election manifesto spells out our strategy for accelerated growth, and I don't think anyone can improve upon the growth process outlined in the election manifesto of the Congress Party. We need more investment. We need more emphasis on job creation. We need lot more emphasis on agricultural growth. We need lot more emphasis on education. We need lot more emphasis on health. And all these are spelled out in great detail in the election manifesto. It's an election manifesto which appeals to the concerns and needs of all sections of our society. It is an election manifesto which seeks to unite all our people behind the Congress Party, behind Sonia Gandhi ji, behind Rahul Gandhi ji. So, brothers and sisters, there are attempts to spread disinformation, and this election manifesto will attempt and has attempted to project a picture, a vision
of the Congress process of growth, which I would invite you to read carefully. This is an election process promise which covers needs of all sections of our society, farmers in particular, scheduled castes, scheduled tribes, our women, our children, and in that process, this is a forward-looking document. I invite you to read it carefully. I invite you to endorse it because it responds to the fact needs of the people of our country. Jai Hind. अब कांग्रेस अध्यक्ष में संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उपाध्यक्ष राहुल जी, A.K. एंटनी जी, द्विवेदी जी, अजय माकन जी, हमारे योगियों और मीडिया के साथियों, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोकसभा चुनाव 2014 के लिए घोषणा पत्र जारी हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आपने अभी देखा कि इस बार के हमारे मैनिफेस्टो को तैयार करते समय एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है। देश भर में समाज के अलग अलग वर्गों से राहुल जी ने सलाह मशविरा किया गया। उनके काफी विचारों और उनकी आकांक्षाओं को इसमें मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। जाहिर है कि सभी सुझावों को इसमें शामिल करना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन सुझावों को हम अलग से प्रकाशित करेंगे अगले कुछ दिनों में। वैसे हमारे सरकारों ने हमेशा देश के आम नागरिक की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप सेवा करने का प्रयास किया है। आपने खुद देखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल का समय एक जबरदस्त आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक सशक्तिकरण का समय रहा। पिछला एक दशक देश के लिए तेज आर्थिक विकास का समय था। ऐसा समय था जिसमें समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए अनेक नए अवसरों के द्वार खुले हैं। ऐसा समय था जिसमें सभी प्रदेशों और पंचायत राज संस्थाओं को बेमिसाल आर्थिक सहायता मिली। ये एक ऐसा समय था जिसमें सांसद द्वारा अनेक दूरगामी और ऐतिहासिक विधेयक पास हुए हैं। हमारे पिछले मैनिफेस्टो में इन कार्यों और उपलब्धियों की स्पष्ट रूपरेखा थी। कांग्रेस पार्टी ने इस बार के घोषणा पत्र में अनेक क्षेत्रों में बिल्कुल नई पहल की। इसमें हम सभी देशवासियों के लिए स्वास्थ्य के अधिकार का वादा किया है, जिससे सबकी सेहत की देखभाल एक सच्चाई बनकर सामने आए। कांग्रेस पार्टी सभी भूमिहीन और गरीब परिवारों को आवास के अधिकार का भी दावा कर रही है। हमारा संकल्प है कि हम उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके
मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रम का विस्तार करते हुए आर्थिक विकास की दर को फिर तेजी से वापस लाएंगे, इससे हमारे युवा वर्ग की उम्मीदें और अपेक्षाएं पूरी हो। हम सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों को एक बड़े पैमाने पर विस्तार देना चाहते हैं। बुजुर्गों, युवाओं और विकलांग भाई बहनों को एक विस्तृत पेंशन सुरक्षा का वादा भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों की भलाई और समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए कई नए कार्यक्रम का संकल्प ले रही है। ये तो सिर्फ कुछ वादों का ही जिक्र है, लेकिन मैं समझती हूँ कि 2014 का चुनाव सिर्फ अच्छे कार्यक्रमों, योजनाओं और आर्थिक विकास के लिए ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए यह चुनाव देश के उस संवैधानिक ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए है जिसे हमारे स्वाधीनता सेनानी पूर्वजों ने कठिन त्याग और संघर्ष के बाद हमें सौंपा था, और जो संविधान न केवल हमारी अनेकता को स्वीकार करता है बल्कि सम्मान के साथ उस पर करना भी सिखाता है। इस चुनाव में हम एक रूपता नहीं, एकता के लिए संघर्ष करेंगे। इस चुनाव में हम उस सामाजिक विचार के लिए संघर्ष करेंगे जो लोगों को आपस में लड़ाता नहीं बल्कि भावना के एकता में जोड़कर रखता है। हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को हर स्तर पर और अधिक मजबूत करने के लिए संघर्ष करेंगे, और हम इस चुनाव में एक ऐसे नेतृत्व के लिए संघर्ष करेंगे तो लोगों का सशक्तिकरण करता है और उनकी सामूहिक शक्ति का राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्थक उपयोग करता है। हम इस चुनाव में एक ऐसे भारत के लिए संघर्ष करेंगे जिसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा भाषा कौन सी है, हमारा क्षेत्र क्या है, या हम किस जाति में पैदा हुए हैं। हम ऐसे भारत के लिए संघर्ष करेंगे जो सेक्युलर है और जहां सिर्फ यह महत्वपूर्ण है कि हम सब भारतवासी हैं। हम इस चुनाव में एक ऐसे भारत के लिए संघर्ष करेंगे जो सिर्फ कुछ चंद लोगों का नहीं बल्कि एक ऐसा भारत जो हम सबका है और उस पर हम सबका बराबर अधिकार है। मित्रों, भले ही दूसरी पार्टियों के लिए चुनाव घोषणा पत्र एक रस्म हो, उनके लिए यह वोट लेने का एक साधन हो, लेकिन हमारे लिए ये एक पवित्र दस्तावेज है। सिद्धांत जबान से बोलने और दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होते, सिद्धांत अपने जीवन और कर्म में अपनाने के लिए होते हैं। कांग्रेस की यही परंपरा है और हमारा यही संकल्प है कि हम इस परंपरा का हर कीमत पर पालन करेंगे। आप सबको यहाँ आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब घोषणा पत्र का लोकार्पण होगा। आई रिक्वेस्ट द कांग्रेस प्रेसिडेंट टू रिलीज द मैनिफेस्टो।
है।